Assalamu alaikum everyone. Welcome to another round of our exciting workshop on freelancing. In this session, we have partnered with University of Turbat Gwadar campus and is brought to you all by Circle Women Pakistan, whose mission is to advance women's economic participation, empowerment through innovative entrepreneurship, advocacy campaigns, and research. We develop and support the entrepreneurial and leadership capacity of women and youth in Pakistan to bring about economic growth and social change. Some of the initiatives by Circle include Tech Karo, She Loves Tech, and Elevate. Circle believes that it is critical for Pakistan's progress to invest in youth, especially women, to build their confidence, capacity, and create platforms for them to bring their ideas forward. These workshops are supported by Friedrich Naumann Foundation for Freedom, which aims to contribute to the enhancement of soft skills in the fields of entrepreneurship, business management, strategic communication, business leadership, and responsible citizenship. Today's session on freelancing will be conducted by our very talented trainer, Ms. Sara Ahmed. She is a 26 own Pakistani young entrepreneur and freelancer, founder and CEO of software company Dassault International SNC Private Limited, and founder at jennybots.com. Sarah was awarded as Hero Microsoft Student Partner in June 2016. She has been entitled as 25 under 25 as Young Entrepreneur by TechJuice. Apart from it, she has been awarded with Laurels of Honor Award by Women Chamber of Commerce, Pakistan in 2018. Sara is involved in many other women empowerment ventures like Freelancers. She is also tech freelancer trainer and has made her presence as a guest speaker in many organizations. So without any further delays, over to you, Sara. Thank you, Sahar, for all the introduction. Assalamu alaikum, everyone. I'm so excited to connect with you all today. So, as Sahar has already introduced a lot about me, so I will just kickstart here and go through a little bit more about me on which level I am doing freelancing at the moment, and then we will start with the session overview and everything. Okay. So if you have any questions, just feel free to write in the comments, or we can do a QA session, like QA interactive session in the end, where you can unmute your microphones and we can keep all the discussions in the end. Okay, so let's start. So I hope you all can see my screen. Let me share it now. Okay, Yes, so we can. my screen is visible. Yes. So right now I am selling my services on Fiverr, on Upwork, and I have also partnered with some direct agencies in New Zealand, USA, Australia, and many direct clients. So like we are a digital agency. We are working from office, and I have like a team of 10 people. So basically, I'm doing all the project managing, taking projects, dealing with clients, so all the quality insurance and everything. So right now, my company is not very big, but it's very lucrative. Right now, we are doing very good, and each day we are learning new stuff, and that's what I'm going to teach you today, how I did it all. Okay. On Fiverr, I have completed more than 2,000 orders. So basically, Fiverr, Upwork, these are the platforms where different clients come. These platforms do advertisement. The clients come on these platforms, and I, as a service provider, offer my services to these clients. Okay. तो basically ये जो services हैं, it ranges from website softwares to voiceovers, presentations, content writing. कोई भी ऐसी service जो आप computer के through दे सकते हैं, ये सब कुछ freelance industry में आता है. No doubt with the passage of time, new लोग आ रहे हैं, बहुत टैलेंट आ रहा है, लेकिन स्टिल इतने क्लाइंट्स भी हैं कि हर चीज़ एकोमोडेट हो जाती है. सो आप लोगों ने इस चीज़ का फियर नहीं करना कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी. It all depends on how you work and what is your approach towards freelancing. So let's start. I think you can see this slide. I have written some points.
जो कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मेरे दिमाग में इनमें से कुछ क्वेश्चंस थे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने फ्रीलांसिंग की पीक पे आ गई थी तब भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक स्केलिंग, हम स्केल कैसे कर सकते हैं, क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, सो मैनी मोर पॉइंट्स, हाउ आई कैन अर्न मोर। सो ये सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ समराइज करने की कोशिश की है। इनमें से कुछ पॉइंट्स को मैं गो थ्रू करूँगी। सो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर आप लोग बिगनर हैं या मीडियम लेवल पे हैं। सो लेट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ बिट अबाउट योरसेल्फ एंड देन वी कैन सी कि मुझे एग्जैक्टली कितना एक्सप्लेन करना चाहिए, राइट? सो जस्ट feel free to unmute your mouse one by one, voice one by one, and let me know कि आप लोग किस सेमेस्टर में हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं और आपकी किस तरह की एक्सपर्टीज हैं। So quickly in like 10 seconds introduce yourself. Anyone will like to start? Hamza, will you like to say something? Sidra, like no one will tell me कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, किस सेमेस्टर में हैं, क्या स्टडीज हैं आपकी, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकरम बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत गवादर कैंपस से। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं वो 6th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर के हैं आईटी, बीएस आईटी में। ओके, तो आप प्लीज कंटिन्यू करें तो समझ आ जाएगी आस्ते आस्ते। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। सो ओके, मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम था जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, और वो बेस्ट टाइम यूनिवर्सिटी का टाइम था। मैंने 2013 में यूईटी बीएस से कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था, and I got graduated in 2017. So I started struggling and learning के how I can earn online. There was a fear in my mind. आप लोगों के mind में भी वो fear होगा कि not sure we will get the job or not sure are we capable of all this stuff, right? तो यही क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए जो कि आपको लीड करेगा सर्च करने पे। मैंने रिसर्च किया, 2015 में मैंने स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग करना। मैंने गूगल पे लिखा हाउ आई कैन अर्न ऑनलाइन। सो मुझे पता चला जी डाटा टाइपिंग होती है, कैप्चा होता है, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट्स, कुछ ऐसी जॉब्स थी जो कि मुझे लगा कि ये तो बहुत दिस इज नॉट व्हाट आई वर्क फॉर, कि मैंने 4 साल पढ़ रही हूँ एंड आई विल बी डूइंग द डाटा एंट्री और कैप्चा राइटिंग। सो बेसिकली जब आप गूगल पे जाके लिखते हैं हाउ टू अर्न ऑनलाइन, आपको बहुत सी रैंडम और फेक वेबसाइट्स मिलेंगी जो आपको कहेंगे आप पैसे हमें जमा करवाएं और आप काम करें और फिर हम आपको पे करेंगे। सो आप लोगों ने ऐसी किसी भी वेबसाइट के पास नहीं जाना। जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है मैं यहाँ कुछ प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंट करूँगी और उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। एनीवेज 2016 में मेरी क्लाइंटेज बन चुकी थी। जब 17 में मैं ग्रेजुएट हुई तो मेरे पास बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं जॉब पे जाऊं, क्योंकि मेरा काम इतना बढ़ चुका हुआ था कि आई वांटेड टू हायर पीपल टू वर्क विद मी रादर देन आई गो टू समवन एंड आस्क देम टू हायर मी, ठीक है। तो उस स्टेज पे 17 में मैं ग्रेजुएट हुई एज अ स्टूडेंट। मेरे पे बिल्कुल प्रेशर नहीं था कि मेरे पास अर्निंग नहीं है, मैंने जॉब करनी है, क्योंकि मैंने एक पाथ अपना बना लिया हुआ था। तो जब आप स्टूडेंट हैं तो यही मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। अदरवाइज आप लोग ग्रेजुएट होंगे, फैमिली प्रेशर होगा, आपका अपना भी प्रेशर होगा, फ्रेंड्स ज्वाइन करोगे ऑफिसेज, सॉफ्टवेयर हाउसेज, एंड यू विल बी लाइक अब तो मेरे पास टाइम नहीं फ्रीलांसिंग का, अब तो मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जाऊंगा या जॉब करूंगा। सो इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू गाइज नाउ कि अपने आप को देखें आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। आई नो कि जब आप स्टूडेंट होते हैं आप सिर्फ बुक्स पढ़ रहे होते हैं, क्विज़ेस दे रहे होते हैं, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, राइट। सो उसके लिए भी वेबसाइट्स हैं आजकल जो सारी कोर्सेज करवा रही हैं कि कौन से टॉप ट्रेनिंग स्किल्स हैं।
सो मैं उस पर गो थ्रू अभी करूँगी, हम उसमें आएंगे, डिजी स्किल्स है, लिंडा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू अ बिट मोर अबाउट देम. सो आई थिंक दैट्स अ क्विक इंट्रो. सो फ्रीलांसिंग में बेसिकली क्या होता है? I will tell you, I was in Saudi last year, 2019 December, and I just had my laptop and my internet with me, and I was working from there. I'm in Lahore, I'm working from here. मेरा काम affect नहीं होता, मेरा काम चलता रहता है. People are working with me, I'm working with clients, no matter where I am, I'm working. So इसको कहते हैं freelancing, कि आप बेशक अपने घर पे बैठे हुए हो, आप किसी वेकेशन पे हैं, आप मुल्क से बाहर हैं, आपका काम स्टॉप नहीं होगा, राइट? सो ये फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा एक बेनिफिट है. आपको इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है. ऑल यू नीड इज़ टू इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग द राइट स्किल्स. आपको सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करना है सही स्किल्स लेने में. आपको बिल्कुल भी पैसों की ज़रूरत नहीं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए. या व्हाट यू नीड इज़ अ लैपटॉप. सो लैपटॉप विल कॉस्ट यू, एंड आई नो हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया, लैपटॉप्स दिए हैं. सो एनीवेज, what you need is essentially a laptop and a good internet device and some skills. That's all. जिसकी वजह से आप लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं. इधर मैं आपको एक केस स्टडी शो करवाऊंगी. फाइवर का एक सेलर है, इसका नाम है आलियान. This is one of the top rated seller on Fiverr. There are a lot of sellers including me, जो कि बहुत जिनकी बहुत ज़्यादा क्लाइंटेज है. So any random guess you will like to say me कि ये बंदा कितना कमा रहा होगा? Any random guess? कोई मुझे थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने Fiverr ज्वाइन किया था 2010 में, as you can see here, and इन्होंने 18,000 प्लस ऑर्डर्स कर डिलीवर, मींस 18,000 प्लस प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है. सो कोई मुझे एक रफ आइडिया दे how much this guy will be making per month. Just feel free to unmute and tell me. I can see your class. कोई एक रैंडम फिगर, 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, anything. Hello, guys, can you hear me? आप लोग चैट पे भी बता सकते हैं अगर माइक का इशू है तो. I think students को थोड़ा सा communication का issue है because of the classroom. Anyways, so एक journal से मैं idea आपको दूंगी. I don't know his exact figure, but I have taken his workshop, and from what I am also doing the work, this guy must be making at least starting from 30 lakhs up to maybe a crore, maybe more, or maybe 70-80 lakhs a month. Can you imagine? Just one person working and making more than 20-30 lakhs per month. So freelancing में कोई लिमिट नहीं है अर्निंग की. And again, he is not, वो अकेला काम नहीं कर रहा, उनके साथ एक टीम है, मे बी 20 लोगों की टीम है, मे बी 30 लोगों की टीम है, I don't know how much, but this is the power of freelancing. Likewise, if you take me as an example, I'm earning, मैं अपनी टीम को सैलरीज दे रही हूँ, like 10 people are associated with me, there are people working with me remotely. So this is the power of freelancing, कि इसमें अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है. जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप स्मार्टली एक्ट करोगे, उतना you will earn, right? From your point of view, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, so बहुत सी सर्विसेज हैं जो आप लोग ऑनलाइन ऑफर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट, कोई भी लैंग्वेज हो जाए, नोड, जावास्क्रिप्ट, jQuery, JS, HTML, CSS, Bootstrap, front end, back end, I mean any type of web development service you can offer online. Software development services you can offer. ठीक है, ग्राफिक्स, अगर आप लोगों को क्रिएटिव डिजाइनर हैं, स्केचिंग पसंद है, सो यू कैन ऑफर ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें लोगोस आ जाते हैं, बैनर्स, पोस्टर्स, बुक कवर्स, फ्लायर्स. आई मीन जस्ट इमेजिन कि आप क्या क्या क्लाइंट को दे सकते हो ग्राफिक्स में. फिर वीडियो मेकिंग, विल यू इमेजिन पीपल आर मेकिंग $300, $400 फॉर 1 minute वीडियो. 10,000, 20,000,
से स्टार्ट होती है 1 मिनट की वीडियो। सो इस तरह की सर्विसेज आप ऑफर करें एंड यू कैन लाइक बूम। उसके बाद अगर आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसकी सर्विसेज ऑनलाइन आप ऑफर कर सकते हैं। वो मैं आपको एक डेमो दूंगी कि हाउ यू कैन ऑफर, राइट। अगर आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो माया, 3D, सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड, मैटलैब, सर्किट एनालिसिस के सॉफ्टवेयर हैं लाइक प्रोटियस। आई मीन इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिसकी बहुत डिमांड है, लोग आते हैं और सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लिंक दिया है, आप लोग ये स्लाइड्स ले सकते हैं मेरे से बाद में। इस लिंक में आप देखिएगा कैटेगरीज की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें आप लोग अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और आई नो कि आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, सो इसलिए हमारी ज़रूरत है कि हम इस सेशन से कुछ सीखें और इन स्किल्स को लेने की कोशिश करें। स्किल्स के लिए कौन सी वेबसाइट है, आई विल टेल यू इन जस्ट नेक्स्ट स्लाइड्स। अगर आप लोगों में से कोई अकाउंटिंग, BBA, MBA के बैकग्राउंड से है तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी आप सर्विसेज दे सकते हैं। So right now you guys are CS guys, so I will just give this slide. अच्छा, अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट भी पसंद नहीं है, ग्राफिक्स भी पसंद नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है, आप लोग इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, उर्दू अच्छी बोल सकते हैं, सो आप लोग वॉइस ओवर की सर्विसेज दे सकते हैं। यू सी द एड्स कमिंग, टीवी में जो एड्स आ रही होती हैं या ऑनलाइन जो वीडियोस बन रही होती हैं एड्स के लिए, वॉइस ओवर की सर्विसेज। I will tell you, when I started my career online, I was not a good software programmer that time, 2015. So I started my services offering voice over services. और वॉइस ओवर में मेरे पास US के क्लाइंट आए, UK का क्लाइंट आए, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई फेल्ट कि नहीं, ये मेरी चीज़ नहीं है, मेरे इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन स्टिल आई फिगर्ड आउट के इवन देयर इज नथिंग यू कांट डू, कुछ तो ऐसा होगा जो आप लोग कर सकते होंगे। उसके बाद डाटा एंट्री की सर्विस आ जाती है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए इस तरह की लाइक PDF को कन्वर्ट करना वर्ड फाइल में, वर्ड फाइल को कन्वर्ट करना एक्सेल में, एक्सेल पे फॉर्मूलाज अप्लाई करना। सो इस तरह की बेसिक चीज़ें जो कि आप लोग कर सकते हैं इन डाटा एंट्री। फिर चीज़ आ जाती है लाइक वर्चुअल असिस्टेंट, डॉक्यूमेंटेशंस बनाना। सो आई विल लाइक कि आप लोग इसको थोड़ा और फर्दर स्टडी करें, टाइम इज लिमिटेड, सो आई कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दीज वन बाय वन, बट दीज आर सम इजी सर्विसेज आई कैन से कि अगर आप लोगों के पास बहुत स्किल्स नहीं है तो आप लोग इन स्किल्स एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक जल्दी से हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट होती कैसे है जिस पे क्लाइंट्स आते हैं। सो ये है fiverr.com. If you can see the screen, this is fiverr.com. इसमें आप देख रहे हैं कि वॉइस ओवर की सर्विस है, वर्डप्रेस मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट की, लोगो डिजाइन की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की। ये जो प्लेटफॉर्म है ये एडवर्टीजमेंट कर रहा है अमेरिका में, डिफरेंट कंट्रीज में। और एडवर्टीजमेंट ये करता है कि आप लोगों को बताता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको लोग मिलेंगे जो आपका काम कर देंगे ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑनलाइन शॉप ओपन करनी है, मैंने एक शॉप ओपन करनी है, बेकरी ओपन करनी है। सो मैं फाइवर पे आती हूँ और मैं कहूँगी कि मुझे एक लोगो बना दो मेरे ब्रांड के लिए, तो मैं इस बंदे को हायर कर लूँगी, उसको 1600 रुपया दूंगी और मेरा लोगो बन जाएगा। कुछ लोग वही लोगो 10,000 में भी बेच रहे हैं, कुछ लोग वही लोगो 6,000 में भी बेच रहे हैं, राइट। सो हम इसको कहते हैं फाइवर पे गिग्स, GIGS। सो ये चीज़ है जिसको हम कहते हैं एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जिसपे मुख्तलिफ लोग होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये 16,000 एक स्टार्टिंग प्राइस है, इसमें डिफरेंट पैकेजेस आ जाते हैं। समटाइम्स क्लाइंट की अपनी कस्टम रिक्वायरमेंट होती हैं, लाइक मुझे लोगो चाहिए जिसकी मुझे सोर्स फाइल भी चाहिए, मुझे 10 किस्म के मुख्तलिफ लोगोस चाहिए। आप उस हिसाब से क्लाइंट को प्राइस कोटेशन दे सकते हैं। नाउ जस्ट गाइस सी दिस थिंग, आई विल डिजाइन 2 मॉडर्न लोगो डिजाइन एंड हाउ मेनी ऑर्डर्स ही हैव इन क्यू। ऑर्डर्स इन क्यू से मुराद के इसको 162 लोगों ने पैसे दे दिए हैं कि मेरा काम कर दो, और ये अभी काम कर रहा है उनका। सो 162 ऑर्डर्स इन क्यू, कैन यू इमेजिन
ये लड़का कहाँ का है? Seems like an Indian और बांग्लादेशी. So just imagine आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे हुए हो और आप यूएस के क्लाइंट्स के लिए ये लोगो बना रहे हैं इस तरह बैठ के. See, he is from India. Anyways, और मे बी किसी क्लाइंट ने 24,000 का पैकेज लिया. So just imagine 24,000 multiplied by 162. एवरेज ले लेते हैं, चलें 5,000 कर लेते हैं कि जरूरी नहीं ना हर कोई प्रीमियम पैकेज लेगा. मे बी 5,000 मल्टीप्लाई 162, हाउ मच इज इट? इज टू मच, राइट? तो इस तरह फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे सर्विसेज ऑफर होती हैं. आप ये देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज हैं. सोशल मीडिया के लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, सोशल मीडिया में सोशल कंटेंट लिख रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन लोगों को फेसबुक का पेज सेटअप करके भी देते हैं. So, मतलब कितनी सर्विसेज हैं. आप जस्ट इस पे आए, थोड़ा सा सर्च करें और आपका दिमाग खुल जाएगा, राइट? तो आपके जितने क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे. इसमें फाइवर पे डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, टॉप सेलर. सो जैसे जैसे आपकी अर्निंग है, आप ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा सर्विस लोगों को ऑफर करते हैं, फाइवर आपको ऊपर से ऊपर लेके जाता है. और जैसे आप ऊपर जाते हैं आपको उतने क्लाइंट्स मिलते हैं, उतने पैसे मिलते हैं. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट होती क्या है. इसी तरह ये वेबसाइट है upwork.com. ये भी एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है लाइक फाइवर और समथिंग सिमिलर. इसमें क्लाइंट आते हैं, अपनी जॉब पोस्टिंग करते हैं, मैं एज अ सेलर अप्लाई करूंगी और मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा, राइट? सो बैक टू स्लाइड्स. अब आप लोग स्किल्स कहाँ से ले सकते हैं? स्किल्स से मुराद आप लोग एक वेबसाइट बनाना कैसे सीख सकते हैं, आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे सीख सकते हैं. उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं. सबसे पहले lynda.com, इट्स वेरी गुड. एक वेबसाइट में यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ, उसका नाम है coursera.com. सो अब मेरे पास जो भी इंटर्न आता है या कोई भी ऐसा लड़का जिसको मैंने सिखाना होता है या लड़की जो भी जिसको मैंने सिखाना होता है, आई रिकमेंड दिस coursera.org. ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्री में कोर्सेज करवाएगी. इसमें फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट डिजाइनिंग सीखनी है, वर्ल्ड टॉप रैंक पर्सन इसमें टीचर्स होते हैं, ठीक है, और ये पूरा आपको कोर्स आउटलाइन देते हैं. फ्री में आप कोर्स कर सकते हैं. ये ऐसा कोर्स है जो कि यूएस के लोग करते हैं, यूएस की यूनिवर्सिटीज में, जबकि आप फ्रॉम पाकिस्तान जस्ट सिटिंग हियर यू कैन डू दिस कोर्स फॉर फ्री. आई विल से एनरोल फॉर फ्री. मैं साइन अप करूंगी एंड दैट्स ऑल. वो क्रेडिट कार्ड पूछेगा लेकिन आपने कहना है कि आई विल डू इट लेटर और बस कोर्स स्टार्ट कर दें. सो दिस इज हाउ यू कैन गो एंड स्टार्ट लर्निंग समथिंग. लेकिन सबसे पहले आपने देखना है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में. क्या आप ग्राफिक करना चाहते हैं या वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं? अगर आप दोनों ही करना चाहते हैं, दोनों स्टार्ट कर दें. आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लाइंट आने लगेंगे. मे बी 2 महीने बाद 2 क्लाइंट्स आ गए, आपने काम किया, फिर आपको पता चला नहीं मेरा इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है. सो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप टेस्टिंग करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. सो दिस इज़ वाई आई रिकमेंड कि आप आज से फ्रीलांसिंग सीखने की कोशिश करें, स्किल्स लेने की कोशिश करें, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके पास टाइम में सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा, कामयाबी आपको ज़्यादा मिलेगी. अगर आपको ये वेबसाइट्स नहीं समझ आ रही क्या हैं, लिंडा, डिजी स्किल्स, यूडेमी, जस्ट गो टू यूट्यूब. जैसे यूट्यूब पे आप जाके गाना सर्च करते हैं उसी तरह कोर्स पे सर्च कर लें, हाउ टू मेक अ लोगो, दैट्स ऑल, एंड यू विल फाइंड ऑसम कोर्सेज. मैंने खुद यूट्यूब से सीखा है जो भी सीखा हुआ है. अच्छा, वंस यू टेक द स्किल्स एंड यू आर स्टिल लर्निंग और अब आप चाहते हो कि आप फाइवर पे अपनी प्रोफाइल बनाओ या अपवर्क पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अपने स्किल्स को प्रेजेंट भी करना पड़ेगा कि आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं. यू हैव टू प्रेजेंट इट, राइट? फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है बैनर हेडर एड्स. ये इन्होंने बैनर बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है. अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है,
अगर हमने किसी को कोई चीज़ सेल करनी हो तो हम उससे इन पर्सन जाके मिलते हैं, ठीक है, सलाम दुआ करते हैं, चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, बंदा हमारे सामने खड़ा हुआ है, आपने कुछ शॉपिंग करनी है, आप बाजार में जाके कपड़े खरीदते हैं, ऐसा ही है। लेकिन ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में क्या है कि आप क्लाइंट को आमने सामने नहीं देख सकते, तो क्लाइंट आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि आप वाकई में जेन्युइन हो, फेक हो, क्या आप वाकई में काम कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि क्लाइंट आपके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर रहा। ये कपड़े की दुकान नहीं कि मैं जाके कपड़ा पकड़ के चेक करूंगी कि इज दिस गुड मटेरियल और नॉट। इट इज कि आपने चीज़ों को ऑनलाइन कंप्यूटर में कैसे प्रेजेंट करना है। सो उसके लिए आपको थोड़े से इमेज एडिटिंग के स्किल्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है फूटर के नाम से, कैनवा के नाम से वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाएं और इस पे जाके आप बड़े ज़बरदस्त से बैनर्स और अपनी पिक्चर्स बना सकते हैं। सो ये फ्री वेबसाइट है कैनवा की, फूटर फ्री है। सो इसमें आप जाके टेम्पलेट सीखें। फॉर एग्जांपल आपने बताना है कि आप पोस्टर बना सकते हो, तो उसकी आपने गिग बनानी है। वैसे तो अगर आप पोस्टर बना सकते हैं तो आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पोस्टर ले सकते हैं। यहाँ से एक टेम्पलेट, यहाँ लिखें वेब डेवलपमेंट 24 आवर सर्विस, 5 डेज ऑफ सर्विस, इसको यूज़ करते हुए आप इजीली अपने इमेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि फाइवर पाकिस्तान, पाकिस्तानी फ्रीलांसर, अपवर्क पाकिस्तान, फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान। ये ग्रुप्स बहुत ज़बरदस्त ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स में होता क्या है कि लोग आपस में आके डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस तरह का क्लाइंट आया है, हमें इस तरह का इशू आ रहा है, प्लस फाइवर ने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप इस ग्रुप में पूछें। इस ग्रुप में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग हैं जो कि फ्रीलांसर्स हैं। आपको आपकी क्यूरी का विद इन मिनट्स आंसर मिलेगा। तो ये ग्रुप्स ज्वाइन करें और आई थिंक दैट्स ऑल कि मतलब आपको काफ़ी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप न्यू चीज़ें लर्न करेंगे। मुझे फ्रीलांसिंग का कैसे पता चला था, हाउ आई केम टू नो अबाउट इट। फर्स्ट मैं खुद भी चाहती थी कि मैं देखूं हाउ आई कैन डू समथिंग ऑनलाइन। मुझे पता चला था कि कुछ लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सो मैंने स्टार्ट किया सर्च करना। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में यूईटी में एक इवेंट हो रहा था ऑन हाउ टू अर्न ऑनलाइन, और मैं अपनी सारी दोस्तों में से, पूरी क्लास में से सिर्फ मैं थी जो उस वर्कशॉप में गई। और उस वर्कशॉप में और भी काफ़ी लोग थे जो कि मेरे फ्रेंड्स थे। आई नो मोस्ट ऑफ देम, राइट। आई वेंट देयर एंड आई टुक माई इंटरेस्ट। मैंने देखा कैसे करना है, हो क्या रहा है, फ्रीलांसिंग है क्या। इसको कहते हैं नेटवर्किंग। मतलब मैं गई, मैंने लोगों से मिली, मैंने ट्रेनर से मिली, उनके एक्सपीरियंस को सुना, मैंने नेटवर्किंग की। जब आप नेटवर्किंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा ट्रेंडी है। अगर मैं वेबसाइट बना रही हूँ तो मे बी वेबसाइट में कोई एक स्पेसिफिक ऐसा लैंग्वेज है जो कि बहुत आपको वैल्यू देगी, जो कि आपके काम को आसान करेगी, काम जल्दी हो जाएगा, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, राइट। तो इस तरह की नेटवर्किंग करने से आपको बहुत सीखने को मिल जाता है। सो इसका यही हल है, एक तो आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, प्लस काफ़ी इवेंट्स होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची, डिफरेंट सिटीज़ में। पेनियर इवेंट करवाती है, सर्कल इवेंट करवा रहा होता है, फाइवर इवेंट करवा रहे होते हैं। सो इस तरह के इवेंट्स में जाएं ताकि आपको पता चले कि व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, राइट। एंड टुडे ये जो आपने कोर्स मेरे साथ ज्वाइन किया है, सेशन ज्वाइन किया है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द नेटवर्किंग टू। मतलब आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप ले लिया है एंड आई एम ग्लैड कि आप लोग आए हैं एंड यू वांट टू नो हाउ यू कैन अर्न। सो विच आर द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स? अपवर्क मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा, फाइवर मैंने आपको दिखा दिया है। इसी तरह पीपल पर आवर प्लेटफॉर्म है, टॉपटाल प्लेटफॉर्म है एक। टॉपटाल जो प्लेटफॉर्म है वो टॉप नॉच प्लेटफॉर्म है उनके लिए है जो कि ऑलरेडी फ्रीलांसिंग में बहुत काम कर चुके हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रामर्स हैं। वो टॉपटाल को ज्वाइन करते हैं और ये लोग 1 घंटे का $100 तक चार्ज करते हैं। $80, $100, $200। इमेजिन 1 घंटे का
अगर आप पाकिस्तान से हैं और एक आप बहुत ज़बरदस्त कोडर हैं, आप लोग भी $100 चार्ज कर सकते हैं। क्लाइंट विल पे यू, राइट? ऐसा नहीं है कि क्लाइंट कहेगा कि आप पाकिस्तान से हैं या आप इंडिया से हैं तो हम आपको $10 पे करेंगे। इट्स नॉट लाइक दिस। फ्रीलांसिंग में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो आपका स्किल है, आपकी कंट्री नहीं। रेट्स अफेक्ट होते हैं नो डाउट, बट स्टिल यू विल स्टिल गेट गुड रेट्स। freelancer.com is one of the very top platform जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे जो रेट्स हैं वो भी कम है, क्योंकि हर कोई जो फ्रीलांसिंग ज्वाइन करता है आता है स्टार्टिंग में फ्रीलांसर पे साइन अप करता है। सो आई विल रिकमेंड कि आप लोग ओके यू कैन ट्राई दिस, बट आई डोंट रिकमेंड इट टू मच। फ्रीलांसर लोग हैं फ्रीलांसर में, नो डाउट यू कैन ट्राई टू। ओके, गुरु इज़ वन ऑफ द अदर प्लेटफॉर्म। ये एक आर्टिकल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने इन सब प्लेटफॉर्म्स को गो थ्रू करवाया हुआ है और इसके अलावा भी और प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, फाइवर पे कुछ वीडियोस हैं जो कि मैं चाहूँगी आप लोग देखें, क्योंकि सेशन का टाइम लिमिटेड है तो मैं आपको फाइवर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आपने इन वीडियोस को देखना है। ये मैंने काफ़ी फाइवर की वीडियोस देखी हैं और ये वीडियोस मैंने शॉर्टलिस्ट की हुई हैं। थैंक यू गाइस। आपके क्वेश्चंस का आई विल जस्ट come back on it in some time. Okay, so ये आपने वीडियोस देखनी है, राइट? नाउ वी आर गोइंग कि आप फाइवर पे अपना पहला ऑर्डर कैसे लेंगे। सो इस प्लेटफॉर्म पे आपने साइन अप किया, आपने अपनी सर्विस ऑफर की है, अब आपको पहला ऑर्डर कैसे मिलेगा, मतलब क्लाइंट आपको कैसे ढूंढेगा, कैसे ऑर्डर देगा। सबसे पहले आपने बाय रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है? बाय रिक्वेस्ट से भी पहले आई विल रिकमेंड कि आप लोग अपनी गिग्स बनाएं। फॉर एग्जांपल इस फ्लो लोगों ने अपनी कितनी गिग्स बनाई हुई, इसको कहते हैं गिग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिग्स बनाई हुई है। सो अगर कोई बंदा सिर्फ एक चीज ऑफर कर रहा है ना, तो क्लाइंट सीरियस नहीं लेता उसको। क्लाइंट विल ऑल्सो से कि यार सिर्फ एक चीज ऑफर कर रहा है, लगता है इसको काम नहीं आता। सो एज अ स्टार्टर आप एटलीस्ट 2-3 चीजें ऑफर करें, ठीक है? आप लोग 2-3 चीजें ऑफर एटलीस्ट जरूर करें। उसके बाद आपने करनी है बाय रिक्वेस्ट। सो बाय रिक्वेस्ट क्या होती है? जब आप लोग फाइवर पे साइन अप कर लेंगे, साइन अप इज जस्ट फ्री। जो मैंने आपको वीडियोस रिकमेंड किए हैं, जस्ट वॉच दिस वीडियोस, उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, फाइवर में बाय रिक्वेस्ट है, इसको कहते हैं बाय रिक्वेस्ट। ये भी मैंने वीडियो आपको भेजी है बाय द वे। अच्छा, इस वीडियो में लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए और आपने बिड करना होता है। बिड से मुराद आपने प्रपोजल भेजना होता है। क्लाइंट ने अपना बजट मेंशन किया होता है, टाइम मेंशन किया होता है, आपने ऑफर भेजनी होती है उनको कि मैं आपका काम कर दूंगा। आप दिन में 10 ऑफर्स भेज सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, इन वन डे यू कैन सेंड 10 ऑफर्स। सो अगर आपने 30 दिनों में 10 ऑफर्स भेजी हैं, मतलब 300 ऑफर्स भेजी हैं, सो मेरे ख्याल से आपको एटलीस्ट 10 लोगों का रिप्लाई तो आना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना? मतलब एटलीस्ट 10 लोग आपको रीच आउट करेंगे। एटलीस्ट 10 पीपल विल रीच यू आउट इन अ मंथ। 10 लोग आए हैं, मतलब कोई एक तो ऑर्डर करेगा ना। आपने 300 लोगों को कहा मैं आपका काम करूंगा, जिसमें से 10 आपके पास आए हैं, कोई एक ऑर्डर करेगा कि नहीं? इतना तो आपका स्किल होना चाहिए, राइट? और क्लाइंट लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में मतलब ग्रामर, आपके टेंसेस, आप उनको लिख क्या रहे हैं, ये चीज़ है जो कि मैं बहुत नोट करती हूँ जब मैं किसी के साथ काम करती हूँ, और मेरा क्लाइंट बहुत नोट करता है। एक टूल है, मैं आपको बता दूँ अभी, उसका नाम है grammarly.com, GRAMM grammarly.com। इस टूल, ये बेसिकली टूल है, एक क्रोम की एक्सटेंशन है। जैसे आप लोग ये डाउनलोड करेंगे और आप अपने क्लाइंट को कोई भी मैसेज लिखेंगे, तो ये जो टूल है ये ऑटोमेटिकली ना एरर करेक्ट कर देती है। आपको बता देगी कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, आपके सेंटेंस में यहाँ एरर है।
आप वो लोग ठीक कर सकते हैं इजीली। सो इसका नाम है grammarly.com। इसको आप लिख लें, मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं लिखा हुआ आई थिंक। grammarly.com। ठीक है, आपने क्लाइंट कैसे लाना है? सबसे पहले तो बाय रिक्वेस्ट करनी है, सर्विस ऑफर करनी है, बाय रिक्वेस्ट करनी है। उसके बाद आपने क्लाइंट को अपने काम के सैंपल्स दिखाने हैं। अब अगेन आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप लोग अभी तो पढ़ रहे हैं, आप सैंपल्स कैसे दिखाएंगे? आपके पास सैंपल्स नहीं है। सो वी विल गो बैक टू दिस पॉइंट कि जब आप डिजी स्किल यूट्यूब से कोर्स कर रहे होंगे तो आपने प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ बनाया होगा। आपने वही प्रैक्टिस टास्क अपने क्लाइंट को दिखा देना है। अगर आप लोग कंटेंट लिख रहे हैं तो आप कोई सैम्पल आर्टिकल्स लिख लें कंटेंट के। अगर आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने लिए तो एक वेबसाइट बनाए ना, abc.com। अब फ्री की होस्टिंग भी मिलती है, फ्री की डोमेन भी मिलती है, ये आपने गूगल करना है कैसे। पैसे हैं तो आप परचेज कर लें, अदरवाइज फ्री की होस्टिंग। मतलब किसी को चीज़ सेल करने से पहले ये तो बताना होता है ना कि मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल वो फाहद मुस्तफ़ा की जो एड्स आती हैं टीवी में, वीवो मोबाइल, यू क्यू मोबाइल, वो यही कहता ना मेरे पास क्यू मोबाइल है, आप भी इस्तेमाल करें। वो ये तो नहीं कहता ना बस खरीद लें, मेरे पास नहीं है, मैं खुद तो आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग क्यों मोबाइल खरीद लें। ही डोंट से लाइक दिस। सो अगर आपने अपनी सर्विस ऑफर करनी है तो सबसे पहले क्लाइंट को प्रूफ तो देना कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं। बेशक अपनी वेबसाइट बना लें, कोई डमी वेबसाइट बना लें, ग्राफिक्स प्रेजेंट करने तो डमी लोगोस बना लें। मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। आई मीन हाली सर्विस ऑफर करके वेट करना क्लाइंट आके ऑर्डर करेगा, ऐसा नहीं होगा। कंपटीशन है एंड यू हैव टू बीट अदर्स। तो आपको सैंपल बनाने पड़ेंगे। इज माई पॉइंट क्लियर? अगर क्लियर है तो हाथ खड़ा कर लें, मैं आप लोगों को देख सकती हूँ। रेज योर हैंड्स। मुझे सिर्फ एक का हाथ नजर आया है। ओके, आई होप कि आप लोगों ने देखा देखी हाँ हाथ नहीं उठाए मेरी बात समझ के उठाए। ओके कूल, थैंक यू। अच्छा, अब हमने सबसे पहले अपनी सर्विसेज ऑफर की हैं, मैंने बाय रिक्वेस्ट भी कर ली है, मैंने सैंपल्स भी बना लिए हैं। अब मैंने बैनर भी बना लिए हैं, राइट, इंटरेक्टिव अट्रैक्टिव बैनर्स बना लिए हैं। ओके दैट्स ऑल। प्लस इट विल टेक सम टाइम, 2-3 मंथ्स एटलीस्ट, कि आपको एक क्लाइंट मिले। ठीक है, अगर आप मुसलसल बिड्स कर रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन ये कि अगेन आप लोगों को फिक्र की जरूरत नहीं है, आप तो अभी पढ़ रहे हैं। अगर आपको ना भी प्रोजेक्ट मिला 1-2 महीने में तो कोई मसला तो नहीं है ना। ये तो नहीं ना कि आपकी फैमिली वेट कर रही है कि मेरा बच्चा कमाएगा वो हमें खिलाएगा। इट्स नॉट लाइक दिस, राइट? सो दिस इज द राइट टाइम कि आप फ्रीलांसिंग करें व्हाइल यू आर स्टडिंग, जिसमें आपको फिक्र ना हो कि ओहो प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, जॉब भी नहीं है। राइट, मेक सेंस? ओके, फाइवर पे कुछ रूल्स हैं जो कि आपने पढ़ने हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज। कोई भी सर्विस लेने से पहले उनकी टर्म्स पढ़ लिया करें। फाइवर कहता है कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते। मतलब लालच में नहीं आना कि मैं 10 अकाउंट बनाऊंगा, किसी एक से तो क्लाइंट आ जाएगा, ये वाली लालच नहीं करनी। एक ही अकाउंट से क्लाइंट आएगा आपके पास। ये हर कोई सोचता है भाई मैं 10 सोर्सेज बना लूं, कहीं से तो क्लाइंट आ जाएगा। वो नहीं, मछली के लिए 10 जाल बिछा लें, कहीं से तो मछली आएगी। इट्स नॉट लाइक दिस, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक अकाउंट बनाना है क्योंकि दिमाग एक है ना, तो एक ही अकाउंट बनाया अभी फिलहाल सो उसको मैनेज करें। उसके बाद आपने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि ये मेरा ईमेल है, इस पे मेरे से कम्युनिकेट करें, ये मेरा व्हाट्सएप है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ऐसा नहीं। अगर आप अपना कॉन्टैक्ट शेयर करेंगे तो फाइवर आपको डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। अगेन अपवर्क ने भी यही स्ट्रेटजी अब स्टार्ट कर दी है। अपवर्क भी कहता है कि आप अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ना शेयर करें। ईमेल शेयर कर सकते हैं जब ऑर्डर स्टार्ट हो जाए, मतलब क्लाइंट ने काम दे दिया फिर ईमेल शेयर करें। लेकिन ईमेल उसी सूरत में शेयर करें जब ज़रूरत हो, नेसेसरी हो। फॉर एग्जांपल क्लाइंट का होस्टिंग है और उसने आपको एक अपना एक्सेस देनी है होस्टिंग की, आपको सब यूज़र बनाना है, तो तब आप अपना उसको लॉगिन सॉरी ईमेल दे सकते हैं, राइट? सो मतलब इफ़ नीडेड, अदरवाइज नॉट। फिर आपने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि मुझे आप डायरेक्ट पेमेंट भेज दें वेस्टर्न यूनियन के थ्रू। भाई ऐसा क्यों है? फाइवर पैसे लगा रहा है, क्लाइंट्स को लेके आ रहा है और आप उनके क्लाइंट्स को लेके जा रहे हैं।
इस तरह तो नहीं काम चलेगा ना। हाँ, लाखों लोग काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, लाखों क्लाइंट्स आ रहे हैं। अगर लाखों लोग लाखों क्लाइंट्स को ले गए तो फाइवर कैसे कमाएगा? सो जब आप लोग कहते हैं ना क्लाइंट्स को मुझे पैसे दे दो डायरेक्ट, ये लो मेरा वेस्टर्न यूनियन, फाइवर आपको ब्लॉक कर देगा। उनके सिस्टम में वो रोबोट्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं जो कि पता लगा लेती हैं कि आप लोग जी पैसे मांग रहे हैं या ईमेल शेयर कर रहे हैं या आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। फिर आपने क्लाइंट को प्रेशर नहीं करना कि मुझे 5 स्टार दे दो। 5 स्टार से मुराद, ये मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस लड़के को लोगो का ऑर्डर करना है ना, तो मैंने कहा ओ इसको तो 5 स्टार्स मिले हैं, दैट्स सुपर, नाउ आई विल टेक हिज सर्विस। तो जितने आपकी रेटिंग होती है इतने आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप क्लाइंट को कहो कि मुझे 5 स्टार दो ही दो। कुछ क्लाइंट्स नहीं 5 स्टार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग उबर क्रीम यूज कर रहे हैं, कौन कौन उबर क्रीम यूज कर रहा है हाथ खड़ा कर ले। उबर क्रीम कोई यूज कर रहा? ओके गुड। उबर क्रीम में क्या होता है, जब आप ड्राइवर को अल्लाह हाफिज कहते हैं, आप उसको रिव्यू देते हैं एक 5 स्टार 4 स्टार, गाड़ी बहुत अच्छी थी, नेविगेशन एक्सपर्ट थी, राइट? ऐसा ही है। इसी तरह फाइवर में भी है। क्लाइंट ने आपको सर्विस, आपने क्लाइंट को सर्विस ऑफर किया, क्लाइंट आपको फिर रेटिंग देता है किस बंदे ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, 5 स्टार या 1 स्टार। कुछ क्लाइंट्स नहीं भी देते हैं। आप जैसे मैं भी समटाइम्स ओवर में आती हूँ, मैं नहीं रिव्यू देती हूँ, भूल जाती हूँ या मैं नहीं देना चाहती हूँ रिव्यू, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मेरे साथ। तो इसी तरह आप भी क्लाइंट्स को नहीं कह सकते हो भाई हमें 5 स्टार रिव्यू दें, आप हमें 5 स्टार रिव्यू दें, इस तरह नहीं। ये भी कहने से फाइवर आपको ब्लॉक कर सकता है। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, लगती सुनने में फनी है, लेकिन दिस इज ट्रुथ के इनके प्लेटफॉर्म की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमने फॉलो करनी है। अच्छा अभी होता क्या है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अब मैं इस बंदे को ऑर्डर करने लगी हूँ, मैंने क्लिक किया कंटिन्यू पे कि ठीक है भाई मैंने इसका सर्विस परचेज करनी है, ठीक है 1600 रुपए की क्वांटिटी आ गई 1600, कुछ और चीज़ें ऐड करनी है साथ एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल हम वो आजकल जाते नहीं है कपड़े खरीदने शॉपिंग करने, वो कहते हैं ट्राउजर अलग से लें, दुपट्टा अलग से ले लें। सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग, एक दिन में सर्विस ले लें, सोर्सफाई ले लें। जैसे जैसे मैंने क्लिक किया तो प्राइस बढ़ती जाएगी। अब मैंने किया चेकआउट। अब जैसे ही मैंने चेकआउट किया ना तो मेरे पैसे कट गए, मतलब क्लाइंट के पैसे कट गए और फाइवर के पास चले गए हैं। पैसे आपके पास नहीं आएंगे अभी, तो कहाँ जाएंगे पैसे? फाइवर के पास। जैसे ही आपने काम डिलीवर किया तो फिर फाइवर के पैसे आपके पास आएंगे इस तरह से। मसलन क्लाइंट ने आपको ऑर्डर किया, यहाँ पे ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने आपको ऑर्डर करना है और क्लाइंट के पैसे जाएंगे एस्क्रो में, इसको कहते हैं एस्क्रो, एक फर्जी अकाउंट, एक फर्जी पेमेंट सिस्टम। और जैसे ही क्लाइंट ने, आपने क्लाइंट को काम डिलीवर किया, मतलब ट्रांसफर गुड्स टू ए, जैसे आपने काम क्लाइंट को दे दिया तो पैसे आपके पास आ जाएंगे। Okay, this is how escrow system works in any freelancing platform. People per hour, Guru, Fiverr, Upwork, freelancer, any platform, same process. So आपने जब भी कभी काम लेना है बड़े सोच समझ के लेना है, अगर आप कर सकते हैं तभी लेना है, अदरवाइज क्लाइंट पैसे वापस भी ले सकता है, वापस लेगा तो आपको कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग बड़ा घबराते हैं ऑनलाइन काम करने से पहले, वो कहते हैं कि हम लोग ना काम कर देंगे, पैसे नहीं क्लाइंट देगा, भाग जाएगा, ये तो फ्रॉड है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो मैंने आपको सिस्टम एक्सप्लेन किया है इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि फ्रॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने पैसे देने हैं तभी आपने काम स्टार्ट करना है।
जब आपने काम डिलीवर करना है, फिर ये फाइवर की जिम्मेदारी है कि वो आपको पैसे पहुंचा दे। ठीक है, सो ऐसा मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लाइंट ने मुझे काम दिया है और मैंने फ्री में करके दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई भी फ्री लंच नहीं है इधर, कोई भी फ्री वाला काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी पोर्टफोलियो। ये आप मेरी पोर्टफोलियो देख सकते हैं। ये वेबसाइट का नाम है behance.net/dissolent। इसके अलावा मैं आपको अपनी यूट्यूब की पोर्टफोलियो दिखाती हूँ और बताऊंगी कि मेरा मकसद क्या है दिखाने का। ये अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं उसके साथ अपना यूट्यूब का लिंक शेयर करती हूँ। वो क्लाइंट मेरी वीडियोस देखता है, उसको पसंद आती है, उसको समझ आ जाता है कि मैं कैसा काम करके दे सकती हूँ। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, PORTFOLIO, पोर्टफोलियो। इसी तरह अगर मैंने किसी क्लाइंट को वेबसाइट का डिजाइन बना के देना है, वेबसाइट बना के देनी है, तो मैं उसको ये सारे सैंपल दिखाती हूँ अपने इस वेबसाइट पे। इसका नाम है behance.net। ये फ्री वेबसाइट है, आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। behance.net पे मैंने अपने सारे डिजाइन पब्लिश कर दिए हैं वेबसाइट्स के। क्लाइंट आता है, देखता है, उसको लगता है हाँ इस लड़की का डिजाइन सेंस अच्छी है, ये मेरे मुताबिक काम कर सकती है। इसमें मुख्तलिफ डिजाइन हैं, बेतहाशा डिजाइन रखे हैं मैंने। क्लाइंट आके देखता है, पसंद करता है, ऑर्डर कर जाता है। अगर मैंने किसी क्लाइंट को गेम का वेबसाइट गेम डिजाइन बना के देना है, तो उसके लिए ये मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। अगर मैंने किसी क्लाइंट को लोगो बना के देना है, तो मैंने लोगो के लिए अलग से एक फोल्डर बनाया हुआ है। इससे क्या होता है कि क्लाइंट को पता चलता है आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। आई नो कि आप लोगों के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है और आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप लोग 100 पेजेस की पोर्टफोलियो बनाएं। आप लोग सिर्फ 2-3 अच्छे डिजाइन बना लें, दैट्स इनफ। न्यू लोगों को वैसे भी थोड़ा सा कम पैसे मिलते हैं स्टार्ट में, और आपके पास इतनी पोर्टफोलियो भी नहीं होती, इसी वजह से आपके रेट भी थोड़े कम होते हैं। लेकिन इसी तरह ही स्टार्ट होता है हर चीज़। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, हर कोई ऐसे स्टार्ट करता है। सो मैं क्लाइंट को अपने लोगोस सिखाती हूँ, उनको लोगोस पसंद आते हैं, डिज़ाइन पसंद आते हैं, एंड दे ऑर्डर। इट इज़ दैट सिंपल। गेम्स के डिज़ाइन दिखा है, क्लाइंट को पसंद आया, ही ऑर्डर। सो गाइज, पोर्टफोलियो समझ आइए आप लोगों को? Okay, let's move to the other slides. Yes, you can use Drive Link. Drive Link आप दे सकते हैं, no issue. अच्छा, Drive Link में मसला ये है कि ना बड़ा पुराना आउटडेटेड चीज़ है Drive Link। मतलब आजकल लोग Behance यूज कर रहे हैं, इस तरह की वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं। ड्राइव इतना यूज नहीं होता। आप दे सकते हैं ड्राइव, नो प्रॉब्लम, लेकिन ड्राइव में इमेजेस छोटी छोटी आ रही होती हैं, या तो आप फुल विड्थ इमेज शो करें ना ड्राइव में, तो दैट्स गुड। तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग कोई ऑनलाइन वेबसाइट देखें, लाइक बिहांस या फ्लिकर। ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो के लिए मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा दूं। अच्छा, पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी सारी टूल्स हैं, थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोग प्रोग्रामर हैं तो आप लोग codepen.io यूज कर सकते हैं। codepen.io में क्या होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं बनी हुई अपनी, तो आप लोग ये codepen यूज कर सकते हैं .io। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं और आपकी वेबसाइट यहाँ शो हो जाएगी बन के इस तरह से। इसको कहते हैं codepen.io। ये प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी इस तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। और जब आपने बना ली है तो आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, उसको बता सकते हैं कि देख लें
जो आप रिक्वायर कर रहे हैं उस तरह का काम मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा है कि मुझे टॉयज के लिए वेबसाइट बना दें, टॉय शॉप के लिए, तो आपने छोटा सा हेडर फुटर बना दिया, बीच में टॉयज की इमेजेस लगा दी, उसको एक डेमो दे दिया कि देखें जी मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीरो कॉस्ट, जीरो इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ऑनलाइन हर किस्म की टूल, बेतहाशा टूल्स हैं, जस्ट आपने एक्सप्लोर करना है इन चीज़ों को। इसी तरह वीडियोस के सैंपल तो यूट्यूब है, ठीक है, विमियो पे आप वीडियोस रख सकते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट राइटिंग का शौक है, लिखना लिखना अच्छा लगता है, तो ये वेबसाइट है medium.com। इस पे आप लोग अपने ब्लॉग्स पोस्ट करें medium.com पे, और ये ब्लॉग्स आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करें। अगेन गूगल ड्राइव लिंक में भी तो आप ब्लॉग शेयर कर सकते हैं, ऐसा ही है ना, ड्राइव में वर्ड फाइल अपलोड कर दें। लेकिन मसला ये, क्लाइंट पहले ड्राइव ओपन करेगा, फिर वर्ड फाइल डाउनलोड करेगा, फिर समटाइम्स compatibility इशू भी आते हैं। उसके पास 1997 का वर्ड, मेरे पास 2010 का है, या वाइस वर्सा, या compatible नहीं आ रही आपकी चीज़ें, तो मसला हो जाता है। सो बाय नॉट कि आप थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्न शो करें, अप टू डेट शो करें टेक्नोलॉजी के साथ, और आप इस तरह की वेबसाइट यूज़ करें लाइक मीडियम। आप उस पर अपना ब्लॉग पोस्ट लिखें, ठीक है, पूरी दुनिया आपके ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकती है, प्लस आप अपने क्लाइंट के साथ वो ब्लॉग पोस्ट शेयर कर दें कि ये देखें जी मेरे काम का सैंपल, बहुत ज़बरदस्त लगता है, प्रोफेशनल लगता है। देख रहे हैं कैसे कैसे कैपिटल एल हुआ है, किस तरह से उन्होंने फॉर्मेटिंग की हुई है, इमेजेस डाली हुई हैं, आई मीन इसमें आप वीडियोस डाल सकते हैं, एवरीथिंग। सो दिस इज समथिंग मोर एडवांस देन आ सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो ये जो मैंने लिंक खोला था किसी और वेबसाइट पे खुल गया था, दिस इज medium.com लिंक। तो एनीवेज आप इसको एक लुक दीजिएगा। अगर आप लोगों को कंटेंट लिखना अच्छा लगता है, इस पर आप अपने कंटेंट लिखें और एज अ सैंपल अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। गोइंग नेक्स्ट, कि आप लोग किस तरह का प्रपोजल किस तरह लिखना है। क्लाइंट को आपने बताना है ना कि आई कैन डू योर वर्क, हाउ यू कैन राइट अ इफेक्टिव प्रपोजल। जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया था कि आपने क्लाइंट को ऑफर भेजनी है, क्लाइंट ने कहा है वी रिक्वायर अ वेबसाइट लाइक omegle.com फॉर रैंडम ऑडियो वीडियो कॉलिंग। आपने इसको अब लिख के बताना है कि हाँ मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट बना सकता हूँ। तो आपने कैसे लिखना है, एक सैंपल दूंगी आपको मैं, या आप देखिएगा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जस्ट अ मिनट। हेलो सर, या हेलो क्लाइंट का नाम, हेलो एबीसी, ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स की जगह आई होप यू आर डूइंग वेल, गुड डे टू यू, ठीक है। दिस इज सारा अहमद, लेट्स से माय नेम, दिस इज सारा अहमद फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान and running my own digital agency with more than 25 Google reviews from our client. We are a team of expert web designer, front-end developers, WordPress developers with 7 years of experience. Are you getting my point? Guys, जल्दी से हाथ खड़ा करें आप अगर मेरे साथ हैं तो, raise your hands quickly. जो पीछे वाले बैठे हुए मास्क लगा के वो भी जी, देखें पढ़ लें आप लोग, पैसा आपने कमाना है, मैंने नहीं कमाना, आप लोगों के लिए ही है। Okay, so we are a team of expert web designers, front-end developers, and WordPress developers with 7 years of experience. We have worked with many WordPress projects and themes and plugins development job. ये जो प्रपोजल है ये इंडिया के किसी बंदे ने मुझे लिखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त प्रपोजल है। मैंने जॉब पोस्टिंग की थी कि मुझे एक प्लगइन चाहिए। पाकिस्तानियों ने भी मुझे प्रपोजल्स भेजे, बांग्लादेश से भी आए, लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त मुझे लगा वो इस इंडियन का मुझे लगा, इसलिए मैं आपको ये सैंपल दिखा रही हूँ। Okay, so I'm continuing. I would love to have the opportunity to discuss with your project with you. We can start work in a short time and as per your required timings.
तो उसने बता दिया कि हम बड़े जल्दी काम स्टार्ट कर सकते हैं और आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपके साथ काम करेंगे। उसने ये नहीं कहा कि मतलब अपने बारे में एमी नहीं वो बोलता जा रहा, बल्कि क्लाइंट को मुखातिब कर रहा है कि जैसे आपने कहा है हम उसके मुताबिक काम करेंगे, आपके टाइम के अंदर काम करेंगे। टू नो अबाउट अस प्लीज सी आवर वेबसाइट। चलें आप इसको इग्नोर कर दें, नो नीड टू शो योर वेबसाइट। लेकिन एक बड़ी अच्छी उसने चीज लिखी है इधर, उसने कहा मेरी एजेंसी का नाम ये है, जो मेरी फॉर्म की टाइप है वो डिजिटल एजेंसी है। फिर उसने बताया कि मेरी एक्सपर्टीज किस चीज में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं ऐसा ही बंदा ढूंढ रही थी जो प्लग इन डेवलपमेंट करे, और उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैं प्लग इन डेवलपमेंट करता हूँ, इन्वेंटरी में काम किया हुआ मैंने, मुझे रेस्ट एपीआई का पता है, मुझे रिएक्ट का पता है। सो उसने मोर देन व्हाट आई आस्क्ड ही एक्सप्लेन एंड आई केम टू नो ही इज समवन जो मेरे लेवल पे आके मुझसे बात कर रहा है। फिर उसने अपना टाइम जोन भी मेंशन किया ताकि क्लाइंट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। उसने पहले बता दिया मेरा टाइम जोन इंडियन टाइम जोन है 5:30 प्लस GMT। फिर उसने कहा है कि मैंने लोगों को कहा था कि जो मुझे प्रपोजल सेंड कर रहे हैं अपने सैंपल भेजें। किसी ने अपना सैंपल नहीं भेजा सवाए इस इंडियन के, और इसी सैंपल की वजह से मैंने उसको पसंद किया। सो उसने कहा है कि आवर बेस्ट प्लगइन डेवलपमेंट पोर्टफोलियो लिंक्स, वर्डप्रेस का ये लिंक है, इवेंटो स्टोर का ये लिंक है, और मेरे और भी जो प्लगइन्स हैं उनके ये लिंक हैं जो मैंने बनाए हैं। इससे मुझे पता चला कि नहीं वाकई में ये बंदा काम कर चुका हुआ है और मेरे स्टैंडर्ड पे। फिर एंड में उसने बड़े अच्छे तरीके से कहा है, लुकिंग फॉर एन affirmative response and have a long term association with you। बड़ी अच्छी क्लोजिंग की है उसने, बेस्ट रिगार्ड्स सारा अहमद और वट एवर, राइट। सो इस तरह का प्रपोजल आप लिखें, और आपको क्यों ना क्लाइंट मिला ऐसे प्रपोजल के बाद। लेकिन हाँ आपके पास इतने तो लिंक्स नहीं है ना, तो आपने एक सैंपल एटलीस्ट एक सैंपल शेयर कर दें, और जो क्लाइंट कह रहा है आपसे मांग रहा है उसी को आप एड्रेस करें, और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। सो एक तो आपका प्रपोजल शॉर्ट होना चाहिए। ये जो इंडियन का प्रपोजल था काफी लंबा था क्योंकि मैंने भी काफी चीजें पूछी थी जॉब में, सवाल मैंने काफी पूछे हुए थे, तो उसने उस हिसाब से लंबा लिखा। सो आपने अपना प्रपोजल शॉर्ट रखना है, पैराग्राफ्स में लिखना है, और छोटा होना चाहिए। 20-10 पेजेस का प्रपोजल नहीं होना चाहिए, इवन 1 पेज का भी प्रपोजल नहीं होना चाहिए। ये प्रपोजल शुड बी शॉर्ट, क्योंकि क्लाइंट जितना शॉर्ट होगा, जितना टू द पॉइंट होगा, क्लाइंट जल्दी पढ़ लेगा, समझ लेगा। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले तो हाय क्लाइंट का नाम लिखना है, उसकी प्रोफाइल का जो भी नाम होगा, हाय ABC ग्रीटिंग्स, ठीक है। उसको कहना है कि ये सैंपल आप देख लें मेरे काम का, जो आप रिक्वायर कर रहे हैं उसके मुताबिक ये एक सैंपल है। फिर आपने उसको बताना है कि इस काम को करने में मुझे 3 दिन रिक्वायर्ड है या 5 दिन रिक्वायर्ड है, उसको टाइमलाइन बतानी है। अगर आप लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो आप कहो कि आपका काम इतने पेजेस का है, और मैं आपका काम इतनी तारीख को स्टार्ट करूंगी और इतनी तारीख को डिलीवर कर दूंगी। कभी भी लंबी लंबी डेडलाइंस नहीं रखते, छोटी छोटी रखते हैं। मतलब ये नहीं कि काम एक दिन का और आपने टाइम 2 हफ्ते का लिया, ऐसा नहीं, दिस इज रॉन्ग। अब क्लाइंट के पास इतना टाइम तो नहीं है ना वो 2 हफ्ते बैठ के वेट करे आपका। मेक सेंस। सो उसके बाद आपने उसको कहना है कि कॉस्ट कितनी है। मैं पर वर्ड आपसे 1 रुपी चार्ज कर रही हूँ, आई मीन 10 वर्ड्स का $1 चार्ज कर रही हूँ लेट्स से, और आपका आर्टिकल होगा 1000 वर्ड्स का, सो उस हिसाब से इतनी कॉस्ट बनेगी। कभी भी क्लाइंट को डायरेक्ट नहीं कहना कि काम $100 का है। भाई क्यों $100, एक्सप्लेन मी। क्योंकि आपने कंटेंट ऐसा लिखवाना है, SEO भी होगी उसमें, ये चीजें ये चीजें होंगी, इसका $10, इसका $20, इसका 50, उसको चीजों को ब्रेक डाउन करके बताना है। ओके, दिस मेक सेंस नाउ। एंड में आपने आपने इस तरह इसको बेस्ट विशेस, आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू रीड माई एप्लीकेशन, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, रिगार्ड्स योर नेम। सो दिस इज हाउ यू शो द क्लाइंट दैट यू आर प्रोफेशनल। मेक श्योर कि आपने फुल स्टॉप्स ऐड किए हो, कैपिटल लेटर्स यूज हुए हो, प्रॉपर कोमास का यूज हो, और इन चीज़ों में आपको ग्रामरली भी हेल्प करेगा, जो मैंने आपको टूल बताई है grammarly.com।
अच्छा, अब आपको समटाइम्स ऐसा होगा कि फाइवर पे क्लाइंट आएगा, फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको इनबॉक्स करेगा और क्योंकि देखे ना क्लाइंट के पास 10 और भी ऑप्शंस हैं, क्लाइंट इधर उधर भी जाएगा, मतलब क्लाइंट रेट लगवाएगा ना अपना काम का। तो 2 दिन बाद क्लाइंट का जॉब नहीं आया, तो आपने क्लाइंट को एक मैसेज भेजना है जिसको कहते हैं फॉलो अप मैसेज। उस फॉलो अप मैसेज में आपने कहना है कि हेलो ABC, whatever is his name, I hope all is well. Just wanted to follow up on the proposal I sent you over last week. Is there anything you need from me? Is there any questions? Best regards. इससे ये होता है कि क्लाइंट आपके पास वापस आ जाता है, बेशक उस काम के लिए ना आए लेकिन अगले हफ्ते आ जाएगा किसी और काम को लेके। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कुछ कहा कि मुझे वेब डेवलपर्स की जरूरत है, कोई 10 सीवीज आई मेरे पास, लेकिन एक बंदे ने मुझे ना हर महीने बाद मुझे मैसेज करता था कि मैम कोई काम है, कोई काम है। अब जब भी कभी कोई काम आता है ना, मुझे सबसे पहले वही बंदा याद आता है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे बार बार इतना अपने आप को रिकॉल करवाया कि मेरे दिमाग में वो बैठ गया। लेकिन ये नहीं करना कि क्लाइंट को रोज मैसेज कर देना है हेलो हेलो हेलो। उसको 2 दिन बाद एक मैसेज कर दिया ना, अब उसको 1 महीने बाद मैसेज कर दें। ठीक है, इसको कहते हैं फॉलो अप करना। तो क्लाइंट आपके पास किसी और काम को लेके आ जाएगा, हो सकता है वो वाली जॉब उसने किसी और को दे दी हो, लेकिन नेक्स्ट जॉब के लिए आपके पास आ जाएगा। गाइज ये चीजें मैंने तकरीबन कुछ 4-5 साल लगा के सीखी हैं, एंड इट्स रेयर कि समवन विल टेल यू टू मच इन डिटेल लाइक दिस। सो आई थिंक अगर आप लोगों ने मेरी बातों में से कोई 10% भी सीख लिया हो, सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू स्टार्ट ऑनलाइन वर्क। नाउ मेन चीज, भाई पैसे कैसे आएंगे हाथ में, हाउ टू गेट मनी इन योर हैंड। सो उसके लिए एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन का नाम है payoneer.com। किसी ने पेनियर के बारे में सुना हो तो हैंड रेस करें। ओके गुड। सो payoneer.com में क्या होता है, आप साइन अप करेंगे, इस पे फ्री साइन अप है, आपके पास मास्टर कार्ड आ जाएगा इस तरह का, जैसे HPL का नहीं कोई भी ATM का मास्टर कार्ड होता है, इसी तरह मास्टर कार्ड आएगा। वो मास्टर कार्ड आप फाइवर के साथ लिंक कर देंगे। लिंक कैसे करना है वो मैंने ये नीचे ये बताया हुआ है, ये आर्टिकल आप पढ़िएगा और लिंक हो जाएगा। सो फाइवर का अकाउंट आपने पेनियर के साथ एसोसिएट कर देना है। जैसे फाइवर पे आपको कोई पेमेंट आएगी तो आपने पे क्लिक करना है और पैसे आपके पेनियर में आ जाएंगे। 2-3 दिन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और पेनियर हर महीने हर साल बाद आपसे तकरीबन $30 चार्ज करेगा। ये उनके सर्विस चार्जेस हैं। जैसे पाकिस्तानी कोई भी लोकल बैंक आपसे 1,000 रुपया चार्ज करते हैं ना, इसी तरह ये भी $30 चार्ज करते हैं। तो आपके पैसे USD में आएंगे आपके पास, डॉलर में, पेनियर के अंदर। इसके साथ पेनियर के पोर्टल में आप अपना कोई भी लोकल बैंक एसोसिएट कर सकते हैं, लाइक HPL। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह होता है, अगर मेरा ओपन हो जाए। सो दिस इज पेनियर और विड्रॉ टू बैंक अकाउंट। ये मेरा पेनियर का अकाउंट है, इसमें मैंने विड्रॉ करना है टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट मैंने क्या कनेक्ट किया है अपना HPL। इसमें मेरा HPL लिंक्ड है, तो मैंने लिखना है कि मुझे अपने पेनियर से $3,000 हैं जो कि मैंने निकलवाने हैं पाकिस्तानी रुपी में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा $2,000, तो ये कन्वर्ट होकर जितनी मुझे पाकिस्तानी रुपी में अमाउंट मिलेगी वो आ जाएगी, ठीक है। और मुझे पता चल जाएगा कि आजकल रेट क्या चल रहा है, 157। आई थिंक रेट 160 हुआ है, लेकिन पेनियर वाले 3 रुपया कम करके आपको देंगे, 3 रुपीज लेस। सो 3 रुपीज का डिफरेंस ऑलमोस्ट। सो पेनियर आप
अप्लाई करेंगे, कार्ड आपके घर पे आएगा, ये वाला कार्ड घर पे आएगा। जैसे ही कभी भी आपके पेनियर में पैसे आएंगे तो $30 डिडक्ट हो जाएंगे। शुरू में कुछ नहीं देना, ये सिर्फ एंड में पैसे कटेंगे। ओके, नाउ गोइंग नेक्स्ट कि आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब अपने लिए, फिलहाल आप अपने लिए कैसे प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं। अगर कभी भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आप ट्रेलो यूज़ करें, TRELLO, trello.com। जैसे कोई प्रोजेक्ट आया है तो आपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। मैं भी ओपन नहीं कर सकती, कॉन्फिडेंशियल डाटा है। एनीवेज, आपने डिटेल्स ऐड करनी है इधर, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देनी है, कुछ भी, राइट। जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया है तो मैंने अपनी प्रोग्रेस को भी मूव कर देना इधर। इससे क्या होगा कि मुझे ट्रैक रहेगा कि मैं अपने काम में किस पॉइंट पे हूँ, मुझे कौन सा क्लाइंट आया हुआ है, और मेरे पास पूरी हिस्ट्री है कि मैंने पिछले महीनों में किस किस क्लाइंट का काम किया हुआ है। आई कैन सी एवरीथिंग हियर, बजाय इसके कि मैं वेबसाइट में जाऊँ ढूंढूं। एवरीथिंग इज इन ट्रेलो। इसी तरह अगर आपने क्लाइंट के साथ कोई बात करनी है, आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं समझ आ रही है, आप फंस गए हो, तो आप उसके साथ जूम कर सकते हैं, जिस तरह के अभी हम कर रहे हैं। जूम से पहले क्लाइंट के साथ टाइम फाइनल करना हो तो उसके लिए calendly.com टूल है, वो यूज कर सकते हैं। ये आप calendly देखें कैसे काम करता है। मैं आपको शो करवाती हूँ। सो calendly में क्या होता है कि आपने क्लाइंट को कहा है कि आप मेरे साथ 60 मिनट या 30 मिनट्स की मीटिंग कर लें। क्लाइंट ने टाइम सेलेक्ट करना है, क्लिक करेगा, अपनी अवेलेबल डेट सेलेक्ट करेगा, कंफर्म करेगा, बस दैट्स ऑल। आपको ईमेल आ जाएगी कि आपके क्लाइंट ने आपके साथ मीटिंग बुक की है, और जैसे आपको ईमेल आएगी मीटिंग की, आपने उसको जूम का लिंक भेज देना है, और नेक्स्ट डे व्हेनेवर यू वांट यू कैन कॉल हिम। सो दैट्स हाउ दिस क्लियरली वर्क्स। जब मैंने अपने कभी किसी क्लाइंट के साथ ऑर्डर लेना होता है और आई एम स्टक, मुझे समझ नहीं आ रही उसकी क्वेश्चंस, और मुझे पता ही क्लाइंट अच्छा है, तो मैं उसके साथ ये क्लियरली कर लेती हूँ। आई थिंक फॉर नाउ इसमें से इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। लेट मी, अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों में से अभी कितने लोग हैं जो कि मिड लेवल पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मतलब महीने के एटलीस्ट 10 ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं। कोई ऐसा बंदा या लड़का या लड़की है तो चैट में बता दे। एनी वन ऑफ यू जो कि अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, क्लाइंट्स हैं उनके पास। सीम्स लाइक कोई भी फ्रीलांसिंग नहीं अभी कर रहा है। सो एनीवेज, दीज आर द लास्ट स्लाइड्स ऑफ द डे, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप लोग अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। कि अगर आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप लोग इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी एजेंसी कैसे बनाई, मैं अपने वर्कर्स को कैसे हैंडल कर रही हूँ, मैं और क्लाइंट्स को कैसे डील कर रही हूँ। सो इन स्लाइड्स में वो सारी एक्सप्लेनेशन है। सो आई थिंक अगर टाइम बचता है तो हम इसको देख लेते हैं, बिकॉज आई थिंक यू गाइस हैवंट स्टार्टेड फ्रीलांसिंग येट, सो दिस विल बी सो एडवांस फॉर यू। ठीक है, तो अभी मैं आपके क्वेश्चंस को रीड कर लेती हूँ, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस इफ वी गेट टाइम। सो एक वन लास्ट थिंग व्हाइल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट चीज ये है कि जब आप लोग कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, सो जस्ट मेक श्योर कि आपका पोस्टर इस तरह का हो, कुछ लाइक आपका आई लेवल आपके लैपटॉप के इक्विवेलेंट हो। आपका जो चेयर है, कैन यू सी दिस, कि आपकी जो कोहनी है इस तरह इस लेवल पे हो, आपकी कीबोर्ड के लेवल पे, और उसको सपोर्ट देनी है नीचे से।
अदरवाइज आपके कंधों पे स्ट्रेन पड़ेगा। सो क्योंकि आई सफर्ड विद दिस, मैंने 2019 में मुझे कॉलर लग गया गले में एंड डॉक्टर सेड योर कोई पीछे कोई स्पाइन होती है, नहीं सेड खराब हो गई है। आई वाज सो मच वरीड, लेकिन खैर खराब नहीं हुई थी, डॉक्टर ने कुछ मिस प्रिडिक्ट किया था। मैंने कॉलर लगाया एंड आई बॉट अ न्यू चेयर। चेयर को 6-7 हज़ार की मैंने वर्कड अ ब्लेसिंग फॉर मी, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो जब आपकी सेहत नहीं ठीक होती है, आप काम भी नहीं कर सकते हो, काम में दिल भी नहीं लगता है, जो आपने इतना बनाए मेहनत की होती है वो भी सारी ज़ाया जाती है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पकड़ के मिस कमिट नहीं करना क्लाइंट के साथ, ठीक है, जिससे आपको भी स्ट्रेस होगा, क्लाइंट भी तंग होगा। जस्ट रिमेंबर, फ्रीलांसिंग में सिर्फ आप लोग काम नहीं कर रहे हो, आप लोग पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आपने अगर गंदा काम किया, योर क्लाइंट विल से इस पाकिस्तानी ने बहुत गंदी सर्विस दी, हमने कभी भी पाकिस्तानियों से काम नहीं करवाना। इट हैपेंड विद मी टू, किसी किसी और कंट्री के लड़के से काम करवाया, नाउ आई डोंट गो टू एनीवन ऑफ दैट कंट्री। सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग सही कमिटमेंट करो, ऑनेस्ट कमिटमेंट करो, काम आता है तो पकड़ो, अगर आपको लगता है काम कर लोगे तब पकड़ लो, लेकिन पता है काम नहीं कर सकते तो एम ही पैसे लेने के लिए काम नहीं पकड़ना, इससे आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। ओके, सो दैट्स ऑल। आप लोग मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैंने फ्रीलांसिंग के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, नॉट सो एक्टिव ग्रुप, बट इफ समवन हैज अ क्यूरी तो वो इधर आके पोस्ट करता है और मैं उसको जवाब दे देती हूँ। ये मेरा कंपनी का ग्रुप है, पेज है, जस्ट लाइक इट फॉर एनी अपडेट्स। इसमें जॉब्स वगैरह आई कीप ऑन पोस्टिंग। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ईमेल मी। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू योर क्वेश्चंस। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डाउन। अदनान, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन सेंड कर दूंगी। आई विल सेंड इट टू योर यूनिवर्सिटी थ्रू द मैनेजमेंट एंड आई थिंक दे विल गिव यू, या आप लोग ये लिंक यूज कर लें। आफ्टर हाफ एन आवर मैं इस पे अपलोड कर देती हूँ प्रेजेंटेशन। disolent.com/circle freelancing, इस पे मैं प्रेजेंटेशन अपलोड कर दूंगी इन हाफ एन आवर। disolent.com/circle CIRCLE-freelancing okay, freelancing. disolent.com/circle/freelancing. Okay, now I will come here. Sarah, I'm working as a senior audit officer in University of Lahore and now I want to explore opportunities for freelancer. Okay, that's great. अगर आप auditing में हैं तो I think maybe आप इस स्लाइड को ज़रा देखिएगा। ऑडिटिंग के लिए जो से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं आप वो ज़रा रिसर्च करें। आप देखें ऑडिट, यहाँ भी आके आप ऑडिट लिखें और देखें आपको क्या मिलता है। ऑडिटिंग के लिए कोई ना कोई सर्विसेज होंगी। आई विल क्रिएट एन ऑडिटेबल, आई विल ऑडिट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर ऑडिटिंग। आप किस स्पेसिफिक डोमेन में ऑडिट कर रहे हैं आप ज़रा नाम लिखें और सी व्हाट हैपन। इसके अलावा आप यहाँ भी लिख सकते हैं ऑडिटिंग जॉब्स ऑनलाइन रिमोट। सो इस तरह भी जरूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको फाइवर पे मिलेगी, समटाइम्स आपको इन वेबसाइट्स पे ऑनलाइन भी आपको और भी वेबसाइट्स हैं। सो ऑडिटिंग, यहाँ से आप आके लिखें तो ये आप देख रहे हैं जॉब्स ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम। यूएस की यूके की कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान से लोगों को हायर करती हैं। इवन पाकिस्तानी कंपनीज भी कुछ हैं जो एज अ पार्ट टाइम आपको फ्रीलांसर के बेस पे काम देती हैं। सो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट वेबसाइट लाइक यू कैन सी अपवर्क पे भी है, फ्लेक्स जॉब्स, ये कोई और प्लेटफॉर्म वेबसाइट है, यू कैन यूज इट। इंडीड, इंडीड पे बहुत जॉब्स आती हैं, सो यू कैन चेक दैट। ओके Miss Sarah, now I am in office, kindly send me the link.
Okay, I'm a JavaScript developer with 1 year of experience in development. I thought अच्छा लेकिन जावास्क्रिप्ट के अगर आपके पास स्किल्स है ना तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और आई थिंक आप ठीक है फ्रीलांसिंग इज़ नॉट योर थिंग आई गॉट योर पॉइंट तो बेसिकली आप चाहती हैं कि आपको कोई जॉब मिले राइट इफ दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड राइट आई थिंक सो आप फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करें जो मैंने आपको बताए हैं ये फेसबुक फॉर फाइवर फ्रीलांसर अपवर्क इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करें वुमेन इन टेक पीके का ग्रुप जो है वो आप देख लें वीकेंड का ग्रुप अन्य मल्टीपल ग्रुप्स हैं यूज दैट और आप उधर पोस्ट करें कि आपके पास ये स्किल है और कोई ना कोई आपको रीच आउट करेगा फॉर द रिमोट वर्क लाइक आई एम नॉट प्रोवाइडिंग some pool of people for these talents लेकिन I think you have to do some effort. You're welcome Akram. Can you have a drive link? So again drive link share कर सकते हैं but I don't recommend it. Use the new tools that are in the market. Okay. How can we have those links in your presentation? So I will give you. Okay. So that's all. Guys, आपके जो जो questions हैं आप मेरे साथ share करें. मैं अभी उसको address करती हूँ. बेशक आप mute करना चाहें आप mute कर सकते हैं. And then we will go back on our slide on how we can scale our business. How we can make it 7 figures. अपने questions please post करें इधर. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ तो आप लोगों को सब समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया एंड वी कैन टॉक मोर नो प्रॉब्लम आप एक्सप्लेन करें जो भी इशू है ओके आई केम टू नो कि आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए आई थिंक लेट मी टॉक विद द ऑर्गेनाइजर एंड विल सी व्हाट हैपन आई थिंक यू गाइस कैन गेट अ रिकॉर्डिंग टू सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं थोड़ा सा गो थ्रू करवाना चाहूँगी समटाइम्स हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोजेक्ट की प्राइसिंग कैसे की जाए तो उसके डिफरेंट वेज हैं एक तो आप फिक्स प्राइस रख लें जैसे एक वेबसाइट बनानी है तो आप देख लें मार्केट में क्या रेट चल रहा है वेबसाइट का एक पेज का 1,000 2,000 10,000 क्या यूएस की मार्केट में 1,000 ओके या 5,000 सो यू हैव टू डू सम रिसर्च आप फाइवर पर लोगों की गिग्स देखें कि वो 2 पेजर 3 पेजर की वेबसाइट कितने में ऑफर कर रहे हैं ठीक है उससे ये हो सकता है कि आप अपना फिक्स रेट उनको एक दे सकते हैं कि जी 3 पेजेस का मैं आपको $30 चार्ज करूंगा या 3 पेजेस का लेट से पर पेज $50 चार्ज करूंगा डिपेंड्स आपका लेवल क्या एक्सपर्टीज क्या है तो आप क्लाइंट को इस तरह चार्ज कर सकते हैं अगर कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगना है तो आप क्लाइंट के साथ आवरली कॉन्ट्रैक्ट कर लें इन द आवरली कॉन्ट्रैक्ट यू कैन टेल द क्लाइंट के मुझे जी 5 आवर्स लगेंगे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 15 घंटे लग सकते हैं मिनिमम 5 और मेरा घंटे का रेट $5 है $10 है 20 30 40 वट एवर इज योर आवरली रेट तो आप अपने जहन में एक बजट रख लें क्लाइंट को बताएं कि मेरा बजट जो होगा ना काम करने का $100 से लेके $300 तक वेरी कर रहा है एंड में जितने भी टोटल आवर्स लगे आई विल लेट यू नो सो दिस इज हाउ यू विल टेल यू क्लाइंट एट हाउ यू वर्क ऑन आवरली अब मैं आपको थोड़ा सा अपवर्क पे लेके आती हूँ और हम थोड़ा सा अपवर्क को गो थ्रू कर लेते हैं दैट हाउ अपवर्क वर्क्स अपवर्क पे जो क्लाइंट होते हैं कुछ कहते हैं कि हमें आवरली काम करवाना है कुछ कहते हैं हमें फिक्स काम करवाना है सिर्फ फिक्स रेट पे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है आई नीड अ लोगो डिजाइन फॉर अ पॉडकास्ट एंड अ वेबसाइट copywriter let's check both these jobs
इनके एक लोगो डिजाइनर चाहिए जिन्होंने कह दिया है कि मुझे $50 एक फिक्स रेट है, तो आपने कहना है ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, यू विल सबमिट अ प्रपोजल. सो बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट यू विल राइट अ प्रपोजल. प्रपोजल जो आपको मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए हैं उनको देखते हुए ग्राफिक्स के लिए जो प्रपोजल लिखेंगे उस पर आपने क्लाइंट्स को फीचर ऑफ सर्विस बताने हैं कि आप लोग उनको सोर्स फाइल देंगे, रिविजन्स देंगे, लोगों का कॉन्सेप्ट देंगे, कलर स्कीम मॉडर्न होगी, मॉडर्न लेआउट होगा, ठीक है, एक मॉकअप होगा. सो ये आपने फीचर्स देने, अगेन प्राइस ब्रेक डाउन करके बताना है. सो आई विल अप्लाई एज अ फ्रीलांसर. इधर मैं सिलेक्ट करूंगी कि मैंने कितना कोट करना है लोगों के लिए, $100 करना है या 5, 50 या 40, मुझे कितना टाइम लगेगा, लेस देन 1 मंथ. और यहाँ आप कवर लेटर लिखेंगे. एक स्लाइड है इधर, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव कवर लेटर, ये आप पढ़ लीजिएगा एक दफा. कवर लेटर लिखा, आइडियाज आपने बता दिए, उसके रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं आपके पास कैसे आइडियाज हैं, एंड दैट्स ऑल. जस्ट सबमिट अ प्रपोजल. सो इस तरह अपवर्क पे काम होता है. अच्छा, अपवर्क पे अब कुछ ऐसी भी जॉब्स हैं जो कि आवरली हैं. फॉर एग्जांपल लेस देन 30 आवर्स पर वीक. आपने सबमिट किया, इधर आके आपने अब फिक्स रेट नहीं बताना, क्योंकि क्लाइंट ने कहा है कि मैं आपको आवरली पे करूंगा, आवरली की काम के हिसाब से आवरली पे करूंगा. सो आपने कहा मेरा आवरली रेट लेट्स से 10 है. यू विल राइट योर कवर लेटर, all the questions client asked you, and submit a proposal. So this is how you guys will do it. Again, अभी कितने आवर्स होंगे एग्जैक्टली ये आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है. जितनी आपके उसके साथ कम्युनिकेशन होगी आपको पता चलेगा. फिर आप उसको कहोगे कि अच्छा अप्रॉक्सीमेटली मुझे 10 आवर्स चाहिए. समटाइम्स क्लाइंट कहता है कि आप अपवर्क का टाइमर इस्तेमाल करें. अपवर्क का इस तरह का कुछ टाइमर है, ओपन नहीं हो रहा. अपवर्क का टाइमर होता है एक, अगर आप छोटा सा देख सकते हैं नीचे. इसमें क्या होता है कि आपके लैपटॉप के स्क्रीनशॉट्स लेते हैं अपवर्क. सो अगर आपने काम कर रहे हैं ना तो आपके स्क्रीनशॉट होते जा रहे हैं, और जितना आपने टोटल काम किया, 1 घंटा काम किया तो आपको 1 घंटे के पैसे मिल जाएंगे, 30 मिनट काम किया तो 30 मिनट के पैसे. और क्लाइंट आपके स्क्रीनशॉट्स देख लेगा एंड में आके. अगर क्लाइंट को लगा कि आपने 10 मिनट ज़ाया किए हैं तो वो डिलीट कर देगा स्क्रीनशॉट, और वो 10 मिनट स्लॉट में से निकल जाएंगे, आपको उस तरह पैसे मिल जाएंगे. एक यहाँ तो आप क्लाइंट को कह दें कि मुझे एक अप्रॉक्सीमेट 10 घंटे का काम होगा, या आप क्लाइंट को कहें कि नहीं आप ना मुझे स्क्रीनशॉट वाला टाइमर दे दें, मतलब मैनुअल नॉन मैनुअल टाइम अलाउ करें, जिससे आपके स्क्रीनशॉट ओपन होंगे और आपको जितना आपने काम किया उसके हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन अपवर्क. अपवर्क इज मोर प्रोफेशनल. जॉब्स मिलना अपवर्क में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फाइवर में इजी है, बिकॉज फाइवर पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और न्यू लोग भी हैं. अपवर्क पे ज़्यादा प्रोफेशनल क्लाइंट्स हैं और ज़्यादा प्रोफेशनल लोग भी काम कर रहे हैं. सो आई विल रिकमेंड कि आप लोग फाइवर से स्टार्ट करें, एंड वंस यू आर डन विद इट जंप ऑन अपवर्क. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड So, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, just feel free to email me sara@disolent.com. Upwork, Fiverr related questions, CodePen, Behance, Payoneer, anything you want to ask me, feel free to get in touch with me, and we will love to answer all your questions. Okay, guys, thank you for coming. Thank you for joining, and that's all for today. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. Thank you so much, Sarah, for conducting an amazing session. The students from Gavadir, they have a few questions, but they have connectivity issues right now. So I will be emailing you their questions so that if you have time, you can respond back. Yeah, Thank sure. you so much again. And thank you everyone for being here and attending the session. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.